everyone, I'm Dr. Muatar Hanif, Assistant Editor at Dental News Pakistan, and I'm so excited to welcome you all to this live session, Guidance for Oral Health Professionals. And I'm so thrilled to welcome our speaker, Professor Dr. Nasir Khan. He's Secretary General, Pakistan Dental Association. Dr. Nasir is also the Head of Department of Oral Biology at Karachi Medical and Dental College, and ex-PMDC member. Please, Dr. Nasir, join us in the video, and hello. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. Today my topic of presentation is guidelines for the oral health professionals COVID-19. Before I start my presentation, I would like to quote a Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, there is no disease that Allah Subhanahu wa Ta'ala created except that Allah also has created its treatment. Sahih al-Bukhari. As you all know, the COVID-19 is here, and he is here for stay for a long period, maybe months, maybe years. So how we start or resume our dental practice? So objective of my today presentation to provide a guidelines for oral health professionals and dental care provider and dental patients during COVID-19 pandemic. As you all know, the dental practice involves the use of rotary and dental surgical instruments, handpieces and ultrasonic scalers, and triple syringes. These instruments create a visible spray that contains large particle droplets of water, saliva, blood, microorganisms, and other debris. And they can spray it on floor, nearby operatory surface, dental healthcare persons and patients. The aerosol generating dental procedure can transmit. The risk of transmission of COVID-19 is very high during this pandemic if not taking proper precautions. Now come to the transmission routes of the in dental practice. ये COVID-19 जो है वो किस तरह dental practice में transmission करता है? इसके तीन mainly जो है वो stages हैं. एक airborne spread होता है, दूसरा contact spread होता है, third is the contaminated surface spread. The risk of COVID-19 infection due to face-to-face communication with the patients and frequent exposure to the saliva, blood, and other body fluids. Airborne spread. As you know, dental devices. Many dental procedures produce aerosol droplets and contaminated droplet of aerosol, and transmission are indirect contact with the human fluids. Dental professionals frequently direct or indirect contact with the human fluids like saliva, and dental professionals and other patients have likely to contact with the saliva and nasal mucosa or conjunctival mucosa. So there is a chance of spread of infections. Then come to the contaminated surface spread, metal, glass, plastic. These surfaces are capable of serving as a potential source of infection. So from infected patients and dental devices contaminated the whole dental offices. Here you can see direct and indirect contamination, droplets and aerosol and airborne. Now prevention, preventive measures or guideline or suggestions. मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कहूँगा जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो और आजकल WHO जो है वो अपनी गाइडलाइंस डे बाय डे चेंज कर रही है, तो दे आर मोर सजेशन एज कम्पेयर टू गाइडलाइंस. उसमें हम डिवाइड करेंगे जनरल रिकमेंडेशंस क्या होती हैं एक डेंटिस्ट के लिए. जनरल रिकमेंडेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड हाइजीन विथ एंटीसेप्टिक हैंड वॉश, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट एंड हैंड शेकिंग, वेयर ए डिस्पोजेबल फ्लूइड रेजिस्टेंस मास्क, कौन सा FFP2 और N95 कवरिंग विथ माउथ एंड नोज. Public service message through electronic media to avoid unnecessary visit to a dental clinics. Only report in case of emergency. जैसे आज आप प्रोग्राम कर रही हैं, ये भी हम उसका एक वे है कि आप पब्लिक मैसेज कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो हम उसको ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं.
Visitor restrictions, only concerned patient who come and relatives should not accompany. सिर्फ जो पेशेंट हो वो डेंटल क्लिनिक पे आए, और accompanying persons और जो भी अटेंडेंट है वो जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए डेंटल क्लिनिक्स में आने से। अच्छा, अब आएंगे डेंटल क्लिनिक प्रोटोकॉल। एक डेंटल क्लिनिक के अंदर क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हम उसको प्रिवेंट कर सकें, उसकी प्रिवेंशन, उसको स्प्रेड को। अप्लाई सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स इन वेटिंग एरिया ऑफ पेशेंट्स। एट लीस्ट 6 फीट 2 मीटर डिस्टेंस अमंग द पीपल होना चाहिए। प्री स्क्रीन पेशेंट्स होने चाहिए। यूज रिकमेंडेड एंटीसेप्टिक हैंड डिसइंफेक्टेंट एंड प्रोवाइड ए फेस मास्क टू द पेशेंट विद respiratory symptoms. Appoint the patients according to slots and avoiding a appointment multiple patient at the same time. हमने multiple patients को जो अपॉइंटमेंट नहीं देना है, हमने एक पेशेंट को एक टाइम पे अपॉइंटमेंट देना है। शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि और कोशिश करके मिनिमल पॉसिबल कांटेक्ट एक दूसरे पेशेंट का होना चाहिए इन वेटिंग एरिया और वेटिंग रूम। प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम ब्रिंगिंग, वही मैंने जैसे पहले कहा कि जो भी उसके साथ अटेंडेंट है या कंपेनियंस है उसको कोशिश करके नहीं आना चाहिए। लेकिन इन सर्टेन जैसे पीडियाट्रिक पेशेंट्स है, पीपल विद स्पेशल नीड्स है या ओल्डर पेशेंट्स हैं, उनके साथ ऑफ कोर्स अटेंडेंट या जो भी आएगा तो उसको आप सिर्फ अलाउ करेंगे किसके अंदर, सिर्फ वेटिंग एरिया के अंदर। नेवर अलाउ है अटेंडेंट टू ए ऑपरेटरी और इन सर्जरी। प्रॉपर रूम वेंटिलेशन इन बोथ वेटिंग एरिया और ऑपरेटरी में होनी चाहिए। रूम वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए और जितना भी प्रॉपर एग्जॉस्ट होगा तो इसके ट्रांसमिशन के चांसेस जो है वो कम होंगे। ये एक स्लाइड है जो जरा शो कर रही है कि आपका रूम जो है किस तरह रूम वेंटिलेशन होनी चाहिए। Then come to a personal protective equipment PPE. This is very important. Always use highest level of PPE including gloves, gown, eye protection, उसके अंदर goggles आ गए, अगर disposable or reusable face shield हो गई that covers the front side of the face, and N95 mask. The disposable gown should be used both for dental surgery involving AGP means aerosol generating procedures और नॉन एरोसोल जेनरेटिंग प्रोसीजर ट्रीटमेंट जो आप करेंगे, दोनों के अंदर आपने जो है वो डिस्पोजेबल गाउन पहननी है, रीयूजेबल गाउन नहीं पहननी। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपके पास जो स्टॉक के अंदर होना चाहिए ताकि उसकी शॉर्टेज ना हो। हाउ यू विल वेयर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यू कैन सी दीज आर द पर्सनल प्रोटेक्टिव वेयर्स। यू कैन सी एन गॉगल्स पहने हुए हैं, फेस मास्क है और गाउन है। टेलीफोनिक ट्रायज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन करें और ये जो टेलीफोनिक ट्रायज है ये आप यहाँ पे असेस करेंगे और पेशेंट को इवेल्युएट करेंगे कि आपने पेशेंट को अपने क्लिनिक पे बुलाना है या उसका अभी ट्रीटमेंट फर्दर डिले करना है। और ये यहाँ पे जो है आपका स्किल और एक्सपीरियंस जो है वो काम आएगा। और पेशेंट को आपने होम इंस्ट्रक्शंस कर देनी है कि पेशेंट ने क्या करना है और उसको फिर एप्रोप्रिएट मेडिसिन दे देनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीफोनिक ट्राई टू अवॉइड पेशेंट, अगर उसको जरूरत नहीं है कोशिश करके उसको डेंटल क्लिनिक्स पे प्लीज ना बुलाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोन ट्रायज है, फिर यहाँ पे आप असेसमेंट करेंगे, ये डायग्राम से जरा शो किया गया है। When patient arrives in dental office prior to dental treatment or before dental treatment, अगर पेशेंट आपके पास डेंटल क्लिनिक में आ गया है, आपने पेशेंट को रिसीव करना है और आइसोलेटेड रूम में एस्टेब्लिश्ड एज ए प्री चेक ट्रायल। आपने उसको कहीं नहीं लेके जाना है, आपके पास एक आइसोलेटेड रूम है जहाँ पे उसको आपने प्री चेक करना है। पेशेंट को आपने ऑफर करना है मास्क इफ दे आर नॉट वेयरिंग, डेंटिस्ट मस्ट वेयरिंग। आपने यहाँ पे पीपीई लाजमी पहनने हैं, उसमें इंक्लूडिंग डिस्पोजेबल गाउन्स हैं, हेड कैप्स हैं, आई प्रोटेक्शन है। वो इस वजह से कि आपको नहीं पता कि ये पेशेंट जो है ये कैरियर है कोविड-19 का या नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ टेस्टिंग का रेशियो बहुत स्लो है। तो आप जो भी पेशेंट आपके क्लिनिक पर आ रहा है आप उसको सस्पेक्टेड कोविड-19 समझिए, ठीक है, कैरियर समझिए। बिल्कुल उसको आपने ये नहीं समझना है कि ये ही और शी इज नॉट ए
कैरियर ऑफ कोविड-19। कंप्रीहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्रीहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री कि उसने लास्ट 14 डेज में या 1 मंथ में कहीं ट्रैवल तो नहीं किया है, और उसकी फैमिली हिस्ट्री वो भी इंपॉर्टेंट है कि उसमें देखिए कि उसके किसी फैमिली मेंबर ने तो ट्रैवल नहीं किया है। एग्जामिनेशन ऑफ वाइटल्स ऑफ पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी टेम्परेचर है, उसका पल्स है और ब्रीदिंग रेट है। एज प्री एग्जामिनेशन उसका आपने माउथ रिंस कराना है विद 1% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, और आपने जब भी करनी है तो 4 हैंडेड डेंटिस्ट्री, सेपरेट पर्सन फॉर एग्जामिन एंड सेपरेट फॉर रिकॉर्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये थोड़ी सी स्लाइड मेरी ब्लंट सी है तो सॉरी फॉर दैट। पेशेंट अराइवल हुआ है, एक तरफ आप क्लिनिकल स्टाफ अपनी प्रिपरेशन कर रहा है और दूसरी तरफ पेशेंट की प्रिपरेशन की जा रही है। अच्छा, अब होता यह है कि एक पेशेंट जो है वो सस्पेक्टेड है कोविड-19 और एक पेशेंट जो है वो कंफर्म है कोविड-19। तो हम पहले स्टार्ट लेंगे इफ पेशेंट इज नॉट सस्पेक्टेड फॉर कोविड-19। अगर पेशेंट सस्पेक्टेड कोविड-19 नहीं है, उस सूरत में भी आपने तमाम ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं जो आप कोविड-19 के लिए सस्पेक्टेड पेशेंट के, जो कंफर्म पेशेंट के लिए लेंगे। आइडेंटिफाई द कंप्लेंट ऑफ पेशेंट, ओनली इमरजेंसी डेंटल प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म। सिर्फ इमरजेंसी डेंटल प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना है। उसमें फिर हमने बिफोर प्रोसीजर क्या करना है, ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करना है और आफ्टर डेंटल प्रोसीजर क्या करना है। बिफोर प्रोसीजर यूनिट मस्ट भी आपने प्रॉपरली उसको डिसइंफेक्ट करना है, अपना जो भी आपका स्टाफ है उसको प्रॉपरली एजुकेट करना है और कवर द डेंटल यूनिट्स विद द प्रोटेक्टिव बैरियर्स। फिर ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर्स पेशेंट जो है शुड बी ट्रीटेड इन आइसोलेटेड एंड वेल वेंटिलेटेड नेगेटिवली प्रेशर्ड रूम। ऑल क्लियर आईपीसी, infection prevention control sign must be on the door during treatment. Avoid aerosol generating procedures, जितना हो सके आपने अवॉइड करना है aerosol generating procedures. Use atraumatic restorative technique. Pre-treatment antibacterial mouth rinse और antiseptic mouth rinse आपने देने। ड्यूरिंग दैट पीरियड आपने जब वो रिंजिंग कर रहा है तो पेशेंट से आपने अवे थोड़ा सा स्टे करना है, क्लोज नहीं जाना है। इफ अगर बहालत मजबूरी, इफ एरोसोल जेनेटिक प्रोसीजर्स आर अनअवॉइडेबल, यूज ए प्रोटोकॉल टू मिनिमाइज द एरोसोल प्रोडक्शन, उसमें फिर भी आपने कम रखनी है। यूज ए रबर डैम एंड यूज हाई वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज हाई वॉल्यूम इवेक्यूएशन सेक्शंस, आपने हाई वॉल्यूम सेक्शंस जो है वो यूज करनी है। अच्छा, अगर पेशेंट जो है वो सस्पेक्टेड है या कंफर्म टू हैव ए कोविड-19, फॉलोइंग सजेशंस जो हैं वो रिकमेंड होगी। आपने पेशेंट को एक आइसोलेटेड रूम में रखना है, और जब कंफर्म केस है तो आप ये याद रखिए आपका खर्चा तो जरूर होगा लेकिन आपने पेशेंट को भी N95 मास्क देना है। कंफर्म कोविड पेशेंट को आपने हर हाल में कोविड-19 मास्क 95 मास्क देना है, और अगर अवेलेबल आपके पास नहीं है तो सर्जिकल मास्क आप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि N95 मास्क दीजिए। अगर पेशेंट जो है नॉट अक्यूटली सिक, अगर इतना सिक नहीं है, सेंड ए पेशेंट टू होम एंड रेस्ट्रिक्ट ए पेशेंट टू कॉल ए मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर। आपने उसको घर भेज देना है और उससे कह देना है जो भी आपको मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर है उसको आपने कॉल करनी है। अगर पेशेंट अक्यूटली सिक है और सीवियरली सिक है, रेफर ए पेशेंट डायरेक्टली टू दी डेजिग्नेटेड कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर। फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पेशेंट को डायरेक्टली डेजिग्नेटेड कोविड-19 जो आइसोलेशन सेंटर है वहां भेज दें। इफ इमरजेंसी डेंटल केयर इज नेसेसरी फॉर कोविड-19 पेशेंट, अगर आपको, आप ये समझ रहे हैं बहुत जरूरी है, तो आप एयरबॉर्न प्रिकॉशंस आपने लेने हैं। आइसोलेटेड रूम है, यूज ऑफ N95 मास्क करना है, एंड नॉन वही AGP कैन बी परफॉर्म इफ नीडेड। AGP देन रेफर टू, कभी भी एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स आपने अपने क्लिनिक में नहीं करना है, उसको हर हाल में डेजिग्नेटेड डेंटल हॉस्पिटल्स में भेजना है। इस वजह से आपने कोविड-19 का पेशेंट अपने क्लिनिक पे हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा कि आप उसकी ट्रीटमेंट करें। आफ्टर प्रोसीजर्स, आपने प्रोसीजर्स के बाद क्या करना है, रिमूव एंड डिस्पोज, जो भी आपके पीपी थे आपने रिमूव कर देना है। हैंड हाइजीन है, आस्क स्टाफ टू रिमूव द प्रोटेक्टिव बैरियर विद ग्लव हैंड्स।
ग्लव्ड हैंड के साथ आपने जो भी आपके प्रोटेक्टिव बैरियर्स रिमूव करेगा। यूनिट एंड डेंटल क्लिनिक्स को डिसइंफेक्ट करना है आपने। डिसइंफेक्ट द रूम्स विद यूवी लाइट्स के साथ आपने जो है उसको डिसइंफेक्ट करना है, और जो भी आपका जो है वो रूम है। वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉलोइंग रिकमेंडेड प्रोटोकॉल। लॉन्ड्री मस्ट बी ट्रीटेड एज ए इन्फेक्टेड। आपका जो भी वेस्ट है, ये होता ही है कि येलो कलर की डबल लेयर बैगेज आते हैं, उसके अंदर आपने इसको लपेटना है, और उसको जो लाइगेशन जो उसको लाइगेट करना है वो आपने गूज नेक की तरह उसको लाइगेट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कोविड के पेशेंट के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं आपके हैं, वो आपने किस तरह उसको डिस्पोज ऑफ करना है। अच्छा, अब नाउ कम टू द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। आपने क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेने हैं, चाहे वो कोविड-19 पेशेंट है या सस्पेक्टेड है या कंफर्म्ड है। आपने अवॉइड करना है इंट्राओरल इमेजिंग। कोशिश करके इंट्राओरल इमेजिंग शुड बी अवॉइडेड। क्यों? कि आपका जो है वो एक्सेसिव स्लाइवेशन होगी और पेशेंट उसके स्लाइवा से आपके कांटेक्ट होगा और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन होगा। तो आपने अवॉइड करना है। पेशेंट को रिंस करना है विद 1.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेशेंट को रिंस करना है, और 0.2% पोविडोन फॉर at least 15 seconds before each appointment. Disposable and single-use instrument आपने यूज करने हैं। Devices should be used whenever possible to reduce the cross-infection risk. Rubber dam should be used if aerosol producing procedure is being performed to help minimize the aerosol or sputters. The dental treatment should be minimal invasive as possible. Aerosol generating procedures should be avoided whenever possible, and DCP जो भी dental care provider है should use the hand instrumentation. Four-handed technique आपने करनी है for control of infection and should be used, followed by फिर आपने instruments को जो भी है उनको clean करना है और उसके बाद heat sterilization करनी है। Prefer the use of high volume आपने सेक्शन यूज करने हैं। अच्छा, एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, नेवर यूज ए सलावा इजेक्टर। इस वजह से समटाइम्स बैकफ्लो could occur when using a saliva ejector, and this backflow can a potential source of cross contamination. तो आपने सलावा इजेक्टर को अवॉइड करना है, आपने हाई वॉल्यूम सेक्शन यूज करना है। अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं तो आपने यूज ए रिजॉल्वेबल स्विचर्स इन ओरल कैविटी टू एलिमिनेट द नीड। उससे क्या होगा कि आपको फॉलो पे आपको पेशेंट को अपॉइंटमेंट नहीं देना पड़ेगा, 3 to 5 या 7 डेज में वो खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। आपने मिनिमाइज करना है यूज ऑफ ट्रिपल सिरिंज। दिस में बी क्रिएट ड्रॉपलेट्स ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ वाटर एंड एयर। डिसइंफेक्टेंट्स हाइपोक्लोराइड और इथेनॉल in hand pieces or triple syringe has been reported to reduce the viral contamination of splatter, but its action in human coronavirus is unknown. जितने भी एरोसोल जेनेटिक प्रोसीजर्स हैं शुड बी शेड्यूल्ड, आपने लास्ट में रखना है। अगर आप कर रहे हैं तो आपने सबसे लास्ट डे ऑफ अपॉइंटमेंट में रखना है, उसको पहले नहीं करना है। If aerosol generating procedure performed without N95 mask and only surgical face mask, regardless of disinfection procedures being effectively executed, the subsequent patients और जितना भी DCP या dental care provider and are the moderate risk for the COVID-19 infections and transmissions. ये याद रखना, अगर आपने वो प्रोटेक्शन PPE नहीं पहना है, N95 नहीं पहना और आपने कर दिया है, तो फिर आप ये याद रखिएगा आप जो है मोर प्रोन है इस इन्फेक्शन के। पॉसिबल अवॉइड एरोसोल, ये डायग्राम में समझा। देन कम टू द जनरल प्रिवेंशन प्रैक्टिस फॉर डेंटिस्ट। आपने जनरल प्रिवेंशन क्या लेने अपने डेंटिस्ट प्रैक्टिस में? प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ एवरी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। जो भी आपके पास पेशेंट आ रहा है, चाहे वो सिम्टम्स के साथ है चाहे वो सिम्टोमेटिक है, आपने उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी है, प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है।
considering every patient as a potential symptomatic COVID-19 carrier। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आप ये याद रखिएगा कि वो पोटेंशियल है कोविड-19 कैरियर का। आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसको आपने रिक्वायर्ड डेंटल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी, आपने उसको क्या डेंटल ट्रीटमेंट देनी है अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी। अब इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हैं, उसमें इंक्लूड होता है आपका ओरोफेशियल डेंटल ट्रामा है, या सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन है, या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है। नेवर 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 डू इलेक्टिव ट्रीटमेंट जब तक के सस्पेंड ऑल इलेक्टिव प्रोसीजर्स टिल फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट द डिजीज इज अंडर कंट्रोल, देन यू कैन स्टार्ट वॉट एवर यू वांट। आप उसमें प्रोस्थेटिक है, इलेक्टिव जो भी आप करना चाहें यू कैन परफॉर्म, लेकिन जब तक कि ये आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं आप इलेक्टिव डेंटिस्ट्री नहीं करेंगे। If basic PPE, including surgical face masks, are not available, do not proceed with any dental procedure regardless of emergency। याद रखना, अगर आपके पास बेसिक फेस मास्क भी नहीं है और ये चीज़ें नहीं है तो आप इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट भी क्लिनिक पर नहीं करेंगे। Clean and disinfect public areas frequently, including waiting rooms आपने disinfect करना है, door, उसके handles, chairs and bathrooms। नॉन डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स, अगर आपके पास नॉन डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स है लाइक हैंड पीसेस हैं, डेंटल एक्सरे इक्विपमेंट्स हैं, डेंटल केयर लाइट्स हैं, शुड बी डिसइंफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस। हैंड पीसेस शुड बी क्लीन टू रिमूव डेब्रीज फॉलोड बाय द हीट स्टरलाइजेशन आफ्टर ईच पेशेंट, एंड पेशेंट कंपेनियन शुड बी वेट आउटसाइड क्लिनिक और कार। आपके पास वेटिंग एरिया में कोशिश करके, जो आपके पास पेशेंट आ रहा है उसके कोई भी अटेंडेंट आ रहा है उसको आप कोशिश करके क्लिनिक के बाहर ही रखिए, या तो उसको आप कह दीजिए गाड़ी में वेट कर ले। कोशिश करें जितना हो सके ये पॉसिबल कीजिए। If patient with a confirmed diagnosis of COVID-19 within the last 14 days is treated in the dental office without the appropriate PPE, these are considered a high risk of scenario। अगर आपने COVID-19 पेशेंट्स को कंफर्म डायग्नोसिस है उसका और आपने उसको 14 डेज पहले ट्रीट कर दिया है, बिफोर 14 डेज, तो आप ये याद रखना आप सब हाई रिस्क पर हैं। डेंटिस्ट और जितना भी डेंटल टीम शुड प्रोसीड टू ए 14 डेज क्वारंटाइन। तो आपको उसको सज़ा ये मिलेगी, आपने फॉलो नहीं किया प्रोटोकॉल जो गाइडलाइंस दी थी, तो फिर आप सब जो है वो 14 डेज के लिए क्वारंटाइन में जाएंगे। जो भी उस डेंटल क्लिनिक के अंदर मौजूद है, चाहे पेशेंट थे, चाहे उनके अटेंडेंट थे, चाहे आपके असिस्टेंट थे और डॉक्टर्स थे। Patient with a resolved COVID-19 infection can be seen in a dental setting at least 3 days or 72 hours since COVID-19 infection symptoms resolved। अगर उसकी symptoms resolve हो चुकी हैं फिर आप उसको 3 days के बाद दे सकते हैं। At least 7 days since their symptoms first spread, defined as a resolution of fever without the use of fever reducing medications and improvement in respiratory system, for example cough and shortness of breath। Clinically recovered patients should be advised to bring a report of 2 negative RT or PCR test for respiratory specimen for 24 hours interval, done at least 8 days after the onset of symptoms to ensure that he has completely recovered। ठीक है, आपने 2 उसकी नेगेटिव रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट मंगानी है जो 24 आवर्स के बाद हुई है। ये कभी भी उसको उससे पहले ट्रीट नहीं करना। अच्छा, यूजुअली जो हम डिसइंफेक्टेंट जो सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, वैसे WHO जो रिकमेंड करता है वो रबिंग इथाइल अल्कोहल 70% इन स्प्रे, और आप उसको रीयूजेबल इक्विपमेंट्स के लिए और यूज़ कर सकते हैं, और 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉर टचिंग सरफेसेस के लिए कर सकते हैं, और लॉन्ड्री ब्लीच जो है 7% भी कर सकते हैं आप, जो हॉस्पिटल में मोस्टली यूज़ करते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% जो मोस्टली हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लॉन्ड्री ब्लीच का जो है COVID-19 में जो है रोल अभी अननोन है। दिस इज ऑल अबाउट।
Yes, Dr. Nasser, that was a wonderful presentation. I'm sure that our audience must have learned a couple of things or more. Can we move on towards our question answer session now? Yes. Okay, sir, you have already explained this, but I just want you to give another, brief over this. That how can people prevent common oral health problems at home in lockdown? देखिए ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं लॉकडाउन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो टूथ ब्रशिंग होती है। आप यू आपने टूथ ट्वाइस ए डे टूथ ब्रशिंग करनी है। Hmm. और देन डेंटल फ्लॉसिंग प्रिवेंट दी आपका जिंजिवाइटिस को प्रिवेंट करेगा और जो बिटवीन द टीथ जो कैविटी होती है उसको प्रिवेंट करेगा। तो डेंटल Hmm. फ्लॉसिंग, अवॉइड यूज़ ऑफ जितने भी आपकी स्टिकी फूड्स हैं और आपकी स्वीट्स हैं और आपकी जो है एसिडिक फूड्स हैं, ये आपने प्रिवेंट करना है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। Hmm. और उसके अलावा आपने जो है वो कोशिश करके एंटीसेप्टिक माउथ रिंसेस यूज़ कीजिए। और ब्रश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स आपने करना है। और एक चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कहूँगा, हमारे वहाँ लोग जो हैं वो बड़े टार्जन बन जाते हैं और वो दांत को एज ए सीजर यूज़ करते हैं और कभी वो बोतल के जो है उसको खोल रहे होते हैं कवर को। तो ट्राई टू अवॉइड, कभी भी एज ए सीजर यूज़ नहीं कीजिए। आपको पता है कि लॉकडाउन पीरियड है, बहुत मुश्किल होगा अगर आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम हो गया ट्रीट करवाने में। तो कोशिश Hmm. कीजिए ब्रशिंग, डेंटल फ्लॉसिंग, अवॉइड शुगर और ये Hmm. हाई इंटेक ऑफ शुगर और इस चीज़ से अवॉइड कीजिए। ये Hmm. मेरा मैसेज है। Yes, sir. I also wanted to ask the vision of the PDA for the future of dental education in Pakistan. देखिए विजन ऑफ पीडीए जो है, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है पीडीए का जो काम होता है बेसिकली, आई बिलोंग्स टू ए पीडीए सेंट्रल। उसका काम होता है पॉलिसी मेकिंग होता है और उसका काम होता है इशू को रेज करना होता है और उसका सॉल्यूशन देना होता है। Hmm. लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रेगुलेटर करता है, गवर्नमेंट करती है। लेकिन आप ये अंदाज़ा कीजिए 1962 से पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन जो है वो बनी हुई है और आज तकरीबन 60 इयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई रोल नहीं है रेगुलेटर के अंदर। जब तक कि आप टर्की देख लीजिए, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके रेगुलेटर में जो एसोसिएशन का रोल होता है, हमारे वहाँ कोई रोल नहीं है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है, हम तो जाहिर सी बात है पॉलिसी या हम इशू रेज कर सकते हैं जैसे कोविड-19 में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कराना जो है वो रेगुलेटर और गवर्नमेंट का काम होता है। तो मैं ज़रा यहाँ आपके इस प्लेटफॉर्म से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जो खुद भी एक डेंटिस्ट हैं और माशाल्लाह वो तकरीबन 35-40 साल जो है वो पीडीए से बिल्कुल मुंसलिक रहे और हमने उनसे लास्ट मीटिंग भी की थी। तो मैं ज़रा उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, सर प्लीज़ ये जो है डेंटल एसोसिएशन का जो है उसके अंदर रेगुलेटर के अंदर रोल जो है ज़रूर कीजिए। और फिर आप खुद देख लीजिए आजकल हो क्या रहा है, पीएमडीसी कभी वो पीएमसी बन जाती है, फिर किसी को इन कर दिया जाता है, फिर आउट कर दिया जाता है, फिर एक ऑर्डिनेंस आ जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और मुझे बीइंग ए डेंटिस्ट बड़ी तवक्का है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल आरिफ अलवी साहब से कि वो ज़रूर इस मैटर को देखेंगे और पीडीए को जो उसका हकीकी रोल है, जैसे दुनिया भर में एसोसिएशन का जो रोल होता है, वो एज ए रेगुलेटर में ज़रूर उसको कराएंगे। Ji. Sir, what are the PDA policies for upcoming dentists? देखें अपकमिंग डेंटिस्ट, अगर आप डब्ल्यूएचओ का डेंटिस्ट और पॉपुलेशन रेशो देखें तो पाकिस्तान में अभी भी बहुत कम है। अमेरिका में अराउंड तकरीबन 1:8,000 या 7,000 रेशो है, जबकि पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ में एक 1:1,50,000 1,70,000 है और सिटीज़ के अंदर ज़्यादा है 1:15,000 20,000। तो रूरल एरियाज़ में जो है थोड़ा सा हमें ये बढ़ाना होगा। और हमारी तो देखिए डेंटल एसोसिएशन का हमेशा ये रोल रहा है कि वो जितना भी जो भी डेंटल एडवांसमेंट हो रही है, जो प्रमोशन हो रहा है, उसको इनकरेज करे। और जितने भी यंग डेंटिस्ट हैं मैं तो कहूँगा ये आपकी एसोसिएशन है, आप लोग आइए, हमें ज्वाइन कीजिए, काम कीजिए। आप रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं उसमें आपको पीडीए हेल्प करेगी, वॉट एवर यू लाइक। तो इंशाल्लाह। Because, sir, recently government has set out certain guidelines for dentists in the dental care settings regarding COVID-19. What are your remarks on that?
लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन उसको फुली इंडोर्स करती है, और जो भी वो गाइडलाइंस है वो बिल्कुल सही हैं और उसको कंप्लीट फुली इंडोर्स करती है। और हमारी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और हमने उसको इंडोर्स भी किया है और हमने मीडिया में भी दिया। Yes, sir. Lastly, sir, what is your message as a dentist for the patients who want to visit a dentist for their dental problems? What are your message for them? देखिए, मेरा मैसेज सिर्फ उनको ये है कि आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कीजिए। कोशिश कीजिए कि पेशेंट को, जब तक कि कोविड-19 है, इसके अंदर ये लॉकडाउन पीरियड है, पेशेंट को क्लिनिक पे ना बुलाइए, ना विज़िट कराइए। जो भी है आप उसको ऑनलाइन ट्रीटमेंट, ऑनलाइन टेली मेडिसिन जो होती हैं वो दीजिए। और मेरा एक थोड़ा-सा लास्ट एक मैसेज ये है कि एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ज़रा सा बीइंग ए मुस्लिम, हम ज़रा ये अपना एक स्लोगन चेंज करें कि हमने इस वायरस से लड़ना है। देखिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें इससे लड़ना है, हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस वायरस से महफूज रखे, प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। हम इस वायरस से लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है? तो ये ज़रा सा बीइंग ए मुस्लिम हमको ये अपना स्लोगन चेंज करना पड़ेगा। दूसरा एक मेरी अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट ये है कि ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन सेंट्रल, और हमारी अभी काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी और उसमें हमने डिसाइड किया है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स के डेंटल हॉस्पिटल्स हैं, जो भी वहाँ पे डेंटिस्ट जो है पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, उसको हम पीपीई जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। पूरे पाकिस्तान में हम फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो डॉक्टर, वो डेंटिस्ट जो इमरजेंसी केसेस कर रहा है पब्लिक सेटअप में, उसको हम, और वहाँ पे जो हमारी ब्रांचेज़ हैं, सिटी ब्रांचेज़ हैं, जोनल ब्रांचेज़ हैं, अब मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ हमें वहाँ से लिस्ट भेजिए, और हम खुद भी कोशिश करेंगे। और हमारा वेबसाइट पे मेरा सेल नंबर है, प्रेसिडेंट का है, हमारा सब ईमेल एड्रेस है, तो जो भी वहाँ हमें करेगा और हमसे कांटेक्ट करेगा, इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। Because I hope that our listeners have actually learned a lot from this presentation regarding COVID-19 and how to maintain, remove the spread of contamination from that. And with that, we have actually reached the very end of our session. Thank you, Dr. Nasir, for taking time out of your busy schedule and guiding us through your knowledge. Thank you very much. Thank you, Dental News. Thank you. I hope the listeners have enjoyed the session as well. Thank you once again, sir. Allah Hafiz.